اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم، سورہ شعراء آیت نمبر 218 اور 219 نمبر، اور سورہ شعراء آپ اس کی ابتدائی آیات کو پڑھیں. یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. طا سین میم سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے. سورت کے ابتدا میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر کے اور اس سورت کا مضمون پڑھیں، اس کی تفاسیر کا مطالعہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احکام شریعت، تبلیغ رسالت، اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام، اور پھر اس پیغام پر احکام شریعت کے اجراء پر، پیغام رسالت پر جو تکالیف دی جا رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو تکالیف دی جا رہی ہیں، ان ساری تکالیف جو نبی پاک برداشت کرتے ہیں اللہ کے نام پر، احکام شریعت کے اجراء پر، تبلیغ رسالت پر، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکالیف، وہ رنج، وہ غم، وہ ظلم، وہ ستم جو سہ رہے ہیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس بات کا اظہار کر رہا ہے الذی یراک حین تقوم. محبوب، وہ رب جب تم تبلیغ رسالت کے لیے، احکام شریعت کے لیے، دین متین، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے ہو، حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو اور اس پیغام پر، اس قیام پر جو تمہیں تکالیف پہنچتی ہیں، جو تمہیں رنج و غم پہنچتا ہے، جو تم پر تکالیف، مصیبتوں کے پہاڑ گرائے جاتے ہیں، اللہ رب العزت تمہاری ہر کیفیت کو دیکھتا رہتا ہے، ہر کیفیت کو دیکھتا رہتا ہے. اس کا ترجمہ تھوڑا سماعت کر لیں. جب ترجمہ ذہن میں ہوگا تو پھر بات آگے سمجھنے میں آسانی ہوگی. الذی، وہ ذات، یراکا، جو ہر وقت دیکھتی رہتی ہے. یعنی کہ ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا، چار بار دیکھا نہ، مضارع کا صیغہ ہے، یراکا مضارع ہے. جو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. کسے دیکھتا رہتا ہے؟ محبوب تجھے. یراکا دیکھتا رہتا ہے، حین تقوم، جب بھی تم قیام کرتے ہو. یہ نہیں کہ صرف نماز کے لیے قیام کرتے ہو تب دیکھتا ہے، نہیں، جب اپنی ذات کے لیے کھڑے ہوتے ہو پھر بھی دیکھتا ہے، جب دین احکام کے لیے کھڑے ہوتے ہو پھر بھی دیکھتا ہے، جب رسالت کے پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہو پھر بھی دیکھتا ہے، جب نماز کے لیے قیام کرتے ہو پھر بھی دیکھتا ہے. محبوب، جس حالت میں بھی تم کھڑے ہوتے ہو، آپ کا رب ہر وقت آپ کو دیکھتا رہتا ہے. وَتُقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور محبوب جب آپ قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرتے ہو، سجود کرنے والوں کے ساتھ سجود کرتے ہو، تو اس وقت بھی وہ آپ کا رب آپ کو دیکھتا رہتا ہے. علماء محدثین علماء مفسرین نے بہت سارے مفاہیم اور بہت ساری تفاسیر ان آیات کے تحت انہوں نے بیان کی ہیں. ایک دو باتیں ابتدائی کر کے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. محبوب، ہم آپ کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرماتے ہیں نماز کے اندر تو قیام کی حالت میں اور جب قیام سے رکوع کی طرف تقلب کرتے ہیں
तकल्लुब का क्या माना है? फिरना, घूमना, एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ मुंतकिल होना। एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ मुंतकिल होना, यह तकल्लुब का माना है। और कुरान पाक में और मुकामात पर भी ये अल्फाज, ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, इंशाअल्लाह उस पर भी बात करते हैं। तो महबूब जब आप क़ियाम से रुकू की तरफ तकल्लुब करते हैं, रुकू से सुजूद की तरफ तकल्लुब करते हैं, सुजूद से तशाहुद की तरफ तकल्लुब करते हैं, तो आपके हर तकल्लुब पर तुम्हारा रब तुझे देखता रहता है। यह नहीं कि सिर्फ क़ियाम की हालत में, क्योंकि अगली आयत पहली आयत की तफसीर कर रही है। दूसरी आयत जो है ना, वतकल्लुबका फिस साजिदीन, ये आयत पहली आयत की तफसीर कर रही है। ये नहीं कि अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, कि जब सिर्फ क़ियाम करते हो उस वक्त तुम्हारा रब देखता है ना, जब क़ियाम से रुकू में जाते हो तब भी तुम्हारा रब देखता है, जब रुकू से सजदे में जाते हो तब भी तुम्हारा रब तुम्हें देखता रहता है, जब सजदे से तशाहुद में जाते हो फिर भी तुम्हारा रब तुम्हें देखता रहता है। गोया तुम्हारी हर हरकत वो हमारी नजर में होती है। इसका दूसरा मफहूम क्या है? दूसरा मफहूम जो मुफस्सिरीन ने बयान किया है, इस आयत की दूसरी तफसीर जो मुफस्सिरीन ने बयान की है वो क्या है? मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की फर्जियत खत्म हो गई, नमाज नाज़िल हुई, पंजगाना मिराज के बाद, मिराज से वापसी पर पंजगाना नमाज जब फर्ज हुई तो तहज्जुद की फर्जियत कैंसिल हो गई, खत्म हो गई। जब तहज्जुद की फर्जियत खत्म हुई तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जो पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, सेहरी के वक्त तहज्जुद के वक्त क़ियाम करते थे, अब फर्जियत खत्म हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका क्या थी? आप उसी वक्त बेदार होते, रूटीन के मुताबिक, आदत के मुताबिक आप जागते और जाग कर क्या करते? अपने घर से निकलते और सहाबा के घरों की तरफ जाते, सहाबा के घरों की तरफ जाते, जाकर उनके घरों को देखते कि मेरे सहाबा पहले इस वक्त नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद फर्ज थी, वो अदा करते थे, अब तहज्जुद की फर्जियत खत्म हुई है, अब इनकी कैफियत क्या है? अब इनकी हालत क्या है? क्या अब गफलत आ गई है, सुस्ती आ गई है, नींद से मोहब्बत हो गई है, चैन का सोना नसीब हो गया है? क्या ये इनकी कैफियत है? या मेरे सहाबा उसी तरह जिस तरह पहले माबूद हकीकी की इबादत करते थे उसी तरह इबादत करते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर सहाबा के घरों की तरफ जो तकल्लुब कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, जो फिर रहे हैं, सहाबा की जो हालत को देख रहे हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब पहले तुम अपने घर के अंदर क़याम करते थे, हम उस वक्त भी तुम्हें देखते रहते थे, अब तुम्हारी कैफियत क्या है कि अपने घर से निकलकर सहाबा के घरों की तरफ जा रहे हो, वहां सिर्फ घूम रहे हो, तकल्लुब कर रहे हो, तुम्हारी इस कैफियत को भी हम देख रहे हैं, इस कैफियत को भी देख रहे हैं। और फिर नबी पाक बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस की दीगर किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं कि जब मैं अपने सहाबा के घरों की तरफ जाता था तो मैंने क्या देखा कि मेरे सहाबा, उनकी कैफियत क्या थी? उनके घरों के अंदर से आवाजें आती, उस सेहरी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की आवाजें आती, तिलावत कुरान की आवाजें आती, और आप फरमाते कि उनकी आवाजें इस तरह होती जिस तरह शहद की मक्खी अपने घर के अंदर गुनगुना रही होती है, इस तरह सहाबा के घरों के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र और तिलावत कुरान की आवाजें आती थी। ये दूसरा मफहूम है
अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, जब सहाबा को देखने के लिए महबूब तुम जाते थे तो तुम्हारा वो देखना, उसको भी हम देखते रहते हैं। अब तीसरा मफ़हूम जो उलमा मुहद्दिसीन ने बयान किया है वो क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज पढ़ा रहे हैं, फर्ज नमाज की इमामत कर रहे हैं। बुखारी, मुस्लिम, हदीस की दीगर किताबों के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। आप नमाज पढ़ा रहे हैं तो कुछ सहाबा, कुछ मुक्तदी वो आपसे पहले रुकू और सजदे में चले जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू जाने से पहले और सजदे में जाने से पहले वो रुकू और सजदे में चले जाते हैं। नबी पाक किबले की तरफ मुंह करके मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं। पीछे सहाबा अमल कर रहे हैं। अमल क्या कर रहे हैं? नबी पाक अभी रुकू में नहीं गए और वो रुकू में चले गए हैं। नबी पाक अभी सजदे में नहीं गए, वो सजदे में चले गए हैं। जब नमाज मुकम्मल हुई तो मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ मुंह किया और मेरे सहाबा, तुम्हारा यह ख्याल है, तुम्हारा यह गुमान है कि मैं सिर्फ किबले की तरफ देखता हूं, मैं सिर्फ आगे देखता रहता हूं और तुम पीछे नमाज के अंदर जो मर्जी करते हो, तुम्हारा यह गुमान है कि मुझे पता नहीं चलता। आप फरमाते हैं मुझे कसम है उस जात की जिसने मुझे हक के साथ बेचा है, मैं आगे भी उतना ही देखता हूं जितना पीछे देखता हूं। ये हदीस पाक जो मैंने आपके सामने पेश की है, ये बुखारी की हदीस पाक है। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर ये हदीस पाक नकल की है और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को अपनी अपनी हदीस की किताबों के अंदर नकल किया है। नबी पाक ने फरमाया कि मैं पीछे भी उसी तरह देखता हूं जिस तरह आगे देखता हूं और आगे भी उसी तरह देखता हूं जिस तरह पीछे देखता हूं, और तुम्हारा यह गुमान है कि मैं तुम्हें नहीं देखता। मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, मैं तुम्हारे खुशू को भी देखता हूं और तुम्हारे रुकू को भी देखता हूं। मुंह आगे है किबले की तरफ और नबी पाक फरमा रहे हैं तुम्हारे खुशू को देखता हूं। खुशू क्या है और रुकू क्या है? खुशू नाम है कल्ब की कैफियत का, कल्ब की कैफियत। ये बुखारी के लफ्ज हैं, मुस्लिम शरीफ के लफ्ज हैं। और एक बात और अर्ज कर देता हूं कि हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इस हदीस पाक को 4 मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ संतों के साथ इस हदीस पाक को अपनी सही बुखारी के अंदर नकल किया है। एक बार हदीस पाक लिख कर आगे चले जाते और आगे बात ना करते, एक ही हदीस पाक को बार बार, ऐसी हदीस को मुकर्ररात कहते हैं, हदीस की इस्तिलाह में मुकर्ररात कहते हैं, जो मुकर्रर दोबारा आए। हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक को कम अज कम जो मेरी नजर से गुजरी हैं 4 मुकाम पर इस हदीस पाक को बार बार ला रहे हैं, मुख्तलिफ लफ्जों के साथ, मुख्तलिफ सनद के साथ 4 बार इस हदीस पाक को ला रहे हैं। गोया इमाम बुखारी इस हदीस पाक को बार बार नकल करके अपनी मोहब्बत, अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं कि मेरा अकीदा क्या है। कुछ लोगों का अकीदा यह है कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, और इमाम बुखारी कहता है कि मेरा अकीदा यह है कि नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म है, आगे का इल्म भी है और पीछे का भी इल्म है।
हर वक्त बुखारी की बात करते रहना, हदीस का पढ़ना और है और हदीस पाक को समझना और है। बार बार कोई ahकाम की हदीस होती, कोई नमाज की हदीस होती, कोई किसी और इबादत की हदीस पाक होती, चलो कहते जी वो इबादत की तरफ तो जो दिला रहे हैं, इबादत की तरफ उसकी अहमियत बता रहे हैं, नबी पाक की शान की तरफ बार बार हदीस का बयान करना, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अकीदा वही इमाम बुखारी का है जो अहले सुन्नत का अकीदा है। अगर कोई कहे कि नबी पाक को दीवार के पीछे का इल्म नहीं और वो बात करे इमाम बुखारी की, तो गोया उसका बुखारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना उसे इमाम बुखारी के साथ कोई निस्बत, ना उसे बुखारी आती है, ना 4 बार कम अज कम 2 मरतबा किताबुस सलात के अंदर और 2 मरतबा बाबुल अजान के अंदर ये हदीस पाक इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम्हें ये गुमान है, तुम ये सोचते हो कि मैं काबे की तरफ, किबले की तरफ मुंह करके खड़ा हूं और मुझे ये इल्म नहीं कि पीछे तुम क्या करते हो। ना, तुम्हारे खुशू को भी जानता हूं और तुम्हारे रुकू को भी जानता हूं, तुम्हारे दिलों की कैफियत क्या है मैं मोहम्मद वो भी जानता हूं और तुम्हारे जिस्मों के रुकू की कैफियत क्या है मैं वो भी जानता हूं। जो अपने पीछे खड़े सहाबा उनके खुशू और रुकू को जानता है, वो अपने पीछे आने वाली उम्मत के खुशू और रुकू को नहीं जानता। तो अब ये बात बयान करके एक लतीफ, इंतहाई लतीफ बात जिसकी तरफ उलमा मुहद्दिसीन इशारा करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जो पीछे खड़े मुक्तदी हैं उनके दिलों की खुशू की कैफियत वो भी जानते हैं और उनके रुकू की जो कैफियत है वो भी जानते हैं। ये बात बयान करके फिर आयत को पढ़ते हैं, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, महबूब हम हर वक्त जब आप क़याम में खड़े होते हैं और क़याम में खड़े होकर आगे मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर पीछे जो मुक्तदियों की कैफियत को, उनकी कैफियत को, उनकी हरकत को, उनकी सकनात को जो तुम देख रहे हो, हम उस कैफियत को भी देखते हैं। बात समझ नहीं आई आपको? महबूब जब आप मुसल्ला इमामत पर क़याम करते हुए पीछे सहाबा का रुकू देखते हैं जो कि जिस्म के साथ ताल्लुक रखता है और उनका खुशू देखते हैं जो कि दिल के साथ ताल्लुक रखता है, तुम्हारा उनका खुशू और रुकू देखना, हम उस खुशू और रुकू को भी देखते हैं जो तुम देख रहे हो। जो तुम देख रहे हो हम वो देख रहे हैं। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम।